Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23421050 and 23310464. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको किया करते हैं सम्मिलित और आमंत्रित करते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए। अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल आपका हो तो अवश्य पूछिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 23314444, 23421050 या फिर 23310464। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित है स्टूडियो में हमारे आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक राजीव रंजन। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, let's begin with the headlines. Well, benchmark domestic indices end with gains. Sensex advances by 567 points. Nifty settles at 25,966. Major Asian stock markets close in positive territory. And government approves first tranche of 7 applications under electronic components manufacturing scheme. कारोबारी सप्ताह के पहले सत्र में घरेलू शेयर बाजार में हुई अच्छी खासी खरीदारी। बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 567 अंक उछला, निफ्टी 25,966 दर्ज हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए और सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत 7 आवेदनों की पहली खेप को मंजूरी दी। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए आपको लिए चलें सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां आज अच्छी खासी लिवाली रही और प्रमुख सूचकांक 0.6% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 567 अंक बढ़कर 84,779 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 171 अंक बढ़त के साथ 25,966 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों पर ध्यान दें तो उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.7% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty began this week's trading on a positive note. Both indices maintained upward momentum throughout the session and closed over 0.6% up today. The Sensex increased 567 points to close at 84,779, while Nifty advanced 171 points to settle at 25,966. Meanwhile, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed with gains. The mid-cap index climbed 0.7% and the small-cap index added 0.5%. In the Sensex pack, 22 out of 30 companies edged upward. Among the top gainers,
Bharti Airtel gained over 2.5%, Reliance rose more than 2.2%, and Eternal advanced 2.2%. In the top laggards, Kotak Bank lost over 1.7%, Bharat Electronics Limited dropped 1.6%, and Infosys fell over 1.3%. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर आ चुके हैं। दिल्ली से हैं नितिन जी फोन लाइन पर बने रहें। इस खबर के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। यदि हम सेक्टोरल इंडेक्स की ध्यान दें बीएसई में, तो 21 सेक्टर में से 19 आज लाभ के साथ बंद हुए हैं। यूटिलिटीज सेक्टर को कोई खास न लाभ हुआ न नुकसान हुआ। सबसे अधिक लाभ कमाने वालों में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के शेयर रहे। इनमें 2.4% की वृद्धि हुई है। ऑयल एंड गैस 1.5% लाभ के साथ बंद हुए। एनर्जी और रियल्टी दोनों में 1.4% की अधिक की वृद्धि हुई है। हेल्थ केयर थोड़ा सा नुकसान के साथ बंद हुआ। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। स्वागत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सोना खरीदना या बेचना इस समय ठीक है, चांदी और सोना? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि गैस जो हम यूज करते हैं किचन के लिए और पेट्रोल, इस पे भी क्या जीएसटी कुछ घटा है? उसकी कुछ जानकारी नहीं है। एक लिस्ट गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसी नहीं निकाली जो हम आम आदमी अखबारों के जरिए हो या कोई भी जरिए से हम उसको देख पाए। जैसे अभी वॉशिंग मशीन के रेट नहीं घटे, हम कन्फ्यूजन में थे तो हमने दुकानदार से बोला कि रेट घट गए, तो उतना नहीं 18% ही है। ऐसे और क्या क्या चीजें हैं जो घटी नहीं है? जैसे फ्रिज के अलावा एसी हो गया, टीवी हो गया, ये तो आपने बता ही दिया। और जो एक होता है फिल्टर पानी करने का, वो भी घटा है कि नहीं घटा? ये कुछ चीजें हैं जो आम कस्टमर की जानकारी में नहीं होगा। जी 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 पहले तो ये पूछ रहे हैं कि सोना और चांदी खरीदना या बेचना। अब पहले ये तो असमंजस में लग रहे हैं कि इन्हें खरीदने की तरफ जाना है, बेचने की तरफ जाना है। अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं तो आप घर में लाया हुआ सोना आमतौर पे तो बेचते नहीं है। खरीदने के लिए जो रीसेंट पीक्स है वहां से सोना काफी नीचे आया है। एक करेक्शन हम इसे कहेंगे। काफी वोलेटाइल है और काफी अनसर्टेन है। तो मतलब इस समय मुझे लगता है कि सोने के अंदर खरीदारी सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जो काफी हाई रिस्क ले सकते हैं और लगातार ट्रेंड्स पे नजर रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए अभी मैं कहूंगा कि सोना चमकीला नहीं, ज्यादा गर्म है। और इनका जो दूसरा सवाल था कुछ वस्तुओं को लेकर, तो जीएसटी की सूची में मुझे लगता है कि कई सारे कहले के विषय हैं, कई सारे पदार्थ हैं, कई सारी वस्तुएं हैं। उन सबों की सूची फिलहाल हम आपको उपलब्ध नहीं करा सकेंगे कि किसमें क्या स्थिति है। बाकी हमारे विशेषज्ञ जी, अब ये दरअसल एक एक सामान के बारे में कहना मुश्किल होता है। आमतौर पर हमने देखा कि जो व्हाइट गुड्स हैं उनमें जहां भी 28% वाली कैटेगरी थी उनमें हमें भाव में कमी आती हुई दिखी है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे वो जाकर के कह रहे हैं कि उसमें क्या हुआ है, तो मुझे भी वापस जाकर के चेक करना पड़ेगा कि यानी उसकी वेबसाइट पर कहले जाके ही हमें यानी फाइन प्रिंट्स को देखकर ही हम स्पष्ट हो पाएंगे कि पक्की जानकारी क्या है। बहरहाल श्रोताओं, आइए हम आपको खबर देते हैं रुपए की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 39 पैसे घटा 88 रुपए 24 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में आज 98.79 पर समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था। यहां पर श्रोताओं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज फोन इन प्रोग्राम है। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और सवाल अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ पूछिए। हम आपके सवालों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां पर एक विराम लेना चाहेंगे। विराम के बाद आपसे फिर मुखातिब होंगे। बने रहिए हमारे साथ। Welcome back, friends. You're tuned into Market Mantra, and we are taking a look at the markets now. Let's take a look at the Asian and European markets. Yes, Manoj. वैश्विक बाजारों में सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां हमारे भारतीय बाजार की तरह ही अच्छी खासी खरीदारी हुई और प्रमुख सूचकांक बढ़त में रहे। सबसे अधिक लाभ में दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक रहा, जिसमें 2.6% की वृद्धि हुई। जापान का निक्की 225 2.5% लाभ के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.2% के आसपास वृद्धि हुई। हांगकांग का हिंगसेंग 1% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में भी 0.4% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली।
यूरोपीय बाजार की ओर चले तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख बना हुआ था। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.1% से अधिक घाटे में चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में भी मामूली नुकसान ही दिख रहे थे। वहीं लंदन का फुटसी 100 मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। यहाँ पर हम एशियाई बाजारों पर चर्चा के साथ प्रधानमंत्री के उस कह लें जो आसियान सम्मेलन है उस पर उनकी टिप्पणी की ओर ले चलना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21वीं सदी भारत और आसियान की है। दुनिया की 1/4 आबादी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो पूरा कालखंड है, ये समय है, वो हमारा है। किस रूप में आप देख रहे हैं भारत मुक्त आसियान और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति को लेकर? जी देखिए, ये स्वाभाविक है कि जिस तरह से दुनिया भर में रेस्ट्रिक्शंस या कहें कि एक तरह से अलग अलग देशों की ओर से टैरिफ के माध्यम से या दूसरे तरीके से विश्व व्यापार को कहीं पे बाधित किया जा रहा है, वैसे में अलग अलग देशों के साथ आपके द्विपक्षीय समझौते हों या अलग अलग समूहों के साथ हों, ये बहुत इसके लिए प्रयास करना बहुत स्वाभाविक है। और आसियान के साथ तो भारत के बहुत पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं जी। और कहीं मैं कहूंगा कि कॉमन एस्पिरेशंस हैं। जैसे आसियान ने भी एक कम्युनिटी विजन 2025 रखा है और हम भी चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने 2047 तक। जी। हमारे काफी हद तक साझा लक्ष्य हैं, कॉमन गोल्स हैं हमारे। और भारत एक ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पे निरंतर हमने यही प्रयास किया है कि ग्लोबल साउथ की आवाज बने और भारत हमेशा किसी भी विश्व मंच पर सिर्फ अपने हित की बात नहीं करता है, वो ग्लोबल साउथ की एक आवाज बन करके सामने अपने पक्ष को रखता है। तो बहुत हमारे कॉमन गोल्स हैं और हमारी सांस्कृतिक साझा विरासतें हैं, बहुत तालमेल है। यहाँ पर हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर आ चुके हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे मुंबई से रत्नाकर को। रत्नाकर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि ये जो हम 10 ग्राम गो हमने बेच दिया तो उसके ऊपर टैक्सेस और जीएसटी का कितना है, वो हमें कितना देना पड़ेगा, ये है। और दूसरा सवाल है कि जुलाई में हमने तो इनकम टैक्स रिटर्न भर दी, हमें फिर रिवाइज रिटर्न भरना है तो कभी तक भर सकते हैं और क्या हालत में रिवाइज रिटर्न भरना जरूरी है? थैंक यू जी। इनका सवाल बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर ये एक व्यक्ति के रूप में सोना बेचने जा रहे हैं, अब एक व्यक्ति के रूप में आप सोना दो तरीके से बेच सकते हैं कि राजीव रंजन ने मनोज पाठक जी को अपने घर का कुछ सोना बेच दिया जी, तो वहां पर कोई जीएसटी नहीं आती। और राजीव रंजन किसी दुकान में जाकर भी सोना अगर बेचता है तो मैं एज ए सेलर कोई जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं हूं, तो वहां भी जीएसटी इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये इनकी शंका क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आया। यदि व्यक्तिगत स्तर पर जब आप बेचते हैं तो फिर बेचने के क्रम में जीएसटी आप पर लागू नहीं होगा, कह रहे हैं हमारे। आप खरीदने जाएंगे तो उसकी प्रक्रिया आप पर लागू होगी, लेकिन बेचने जाने पर आप पर, चूंकि आप सूचीबद्ध नहीं हैं, तो आपकी कोई वैसी देनदारी नहीं बनती है। यहाँ पर हम लेना चाहेंगे श्रोताओं एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। Welcome back, friends. You're tuned into Market Mantra, and we have Shankar now online, and he's calling us all the way from Bhopal. And let's connect with Shankar. Hello, Shankar ji. Market Mantra team. हाँ, नमस्कार शंकर जी, सवाल पूछिए हमारे एक्सपर्ट से जी। So my question is about technology heavy index. Nasdaq ETF has seen a run up of almost 25 to 30% in this 1 year to date. How this will and they are basically more into AI companies, because of AI companies run up, Nvidia, etc. How do you see this reflecting in Indian tech funds, technology ETFs, and because our technology companies are more or less into services, they are not so much into the AI sector. So if there is any correction or stagnation happens in American stock heavy these companies, how will impact India? और दूसरा इसी से लिंक सवाल है कि ये जो हाई डेट ऑफ यूएस है, will it impact something in US market? Then that how will it impact Indian stock markets? Thank you, sir. जी देखिए, आईटी सेक्टर में आपने पहले ही काफी जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, आपने पहले उस पर पॉइंट आउट कर दिया है कि नैस्डैक में जो तेजी आ रही है वो एआई रिलेटेड एक्टिविटीज के चलते आ रही है।
और भारत में जो आईटी कंपनियां हैं वो एआई में अभी उतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन होनी शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने इस बार ही देखा हो, जैसे टीसीएस ने जो घोषणाएं की हैं या एचसीएल टेक ने जो घोषणाएं की हैं अपने तिमाही नतीजों के बीच में, हालांकि यहाँ पर हम कोई कंपनी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर सामने रख रहे हैं कि भारतीय आईटी इंडस्ट्री भी अब एआई की तरफ बहुत सचेत है और आगे सक्रियता से बढ़ रही है। लेकिन आपका पॉइंट सही है कि नैस्डैक में जो तेजी है उसमें एआई का एक बड़ा रोल है, और जो भारत की आईटी कंपनियों में सुस्ती है उसके पीछे एक बड़ा संशय ये है कि एआई के दौर में सर्विसेज इंडस्ट्री आईटी की कितनी आगे बढ़ेगी या कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये संशय जो है इसके दूर होने में मुझे लगता है कि अभी कुछ समय और लगेगा, और आईटी क्षेत्र जो है हमारा वो अभी शायद कुछ समय तक और इसी तरह से ठंडापन दिखाए। बहुत गिरावट शायद ना भी आए, लेकिन एक ठंडापन बना रह सकता है। और नैस्डैक में काफ़ी तेजी आ चुकी है, तो उसकी गिरावट कब आएगी इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप वहाँ ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा रखिए और सिर्फ वही पैसा रखिए जिस पर आप हाई रिस्क ले सकते हैं। So it's like wait and watch. Huh? All right. We are now joined by Dinesh calling us from Delhi. जी दिनेश जी अपना सवाल पूछिए जी। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। जी जी। अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले 10-15 दिन पहले करीब एमसीएक्स में चांदी जो है करीब मैक्सिमम 1,70,000 टच किए था, और उस समय करीब स्पॉट में जो अनऑफिशियल प्रीमियम था वो करीब 25-30 हजार था। तो अगर हम उस समय चांदी खरीदने जाते थे तो हमको करीब 2 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से रेट मिल रहा था। तो अगर हम उस समय चांदी बेचते तो क्या हमको 2 लाख रुपए का रेट हमको ही मिलता उस समय, या फिर ये स्पॉट में मतलब क्या है उस समय जब मैक्सिमम स्पॉट है तो क्या बेचने और खरीदने का रेट सेम हो जाता है, हायर रेट हो जाता है? थैंक यू प्लीज। देखिए, अब ये तो वही बात हो गई। अब जब आप मकान खरीदने जाते हैं तो आपको रेट कुछ और मिलता है, जब आप बेचने जाते हैं तो आपको रेट कुछ और मिलता है। जब आप फिजिकल सोना या चांदी खरीदने जाते हैं तो दुकानों पे आपको भाव कुछ और बताए जाते हैं, जब आप बेचने जाते हैं तो आपको भाव कुछ और बताए जाते हैं। वो दुकानदार की अपनी दुकानदारी है, उस पर हम कोई सवालिया निशान लगाएं या उसका हम मजाक बनाएं वो भी बात सही नहीं है। उसकी अपनी दुकानदारी है। खरीदने और बेचने का भाव अगर दुकान पर एक ही रहेगा तो दुकानदार कमाएगा क्या? तो जाहिर सी बात है कि जिस भाव पर आप खरीदने जाएंगे वही भाव आपको बेचने के लिए उस समय नहीं मिलेगा। ये तो स्वाभाविक है, कुछ तो अंतर रहेगा ही। यहीं पर श्रोता हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। Welcome back, friends. You're tuned into Market Mantra, and we move on with some more news. The Ministry of Electronics and Information Technology has approved the first tranche of 7 applications under the Electronic Components Manufacturing Scheme (ECMS) today. All these applications entailed a total investment of 5,532 crore rupees and expected production worth 44,406 crore rupees. These projects are expected to generate over 5,000 direct jobs. The approved projects span multi-layer PCBs, HDI PCBs, camera module sub-assemblies, laminates and polypropylene film, reinforcing India's growing self-reliance in core electronic components. माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे एक फोकस के साथ काम किया है। उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी टॉप 3 कैटेगरीज में एक्सपोर्ट कैटेगरीज में आ चुका है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ेगा और देश में बहुत अच्छा इकोसिस्टम सप्लाई चेन डेवलप हो रहा है। आज के इन 7 प्लांट्स से और भी नए इनिशिएटिव्स होंगे और साथ ही साथ बहुत जल्दी आने वाले समय में और भी कई प्लांट्स अप्रूव होंगे इस स्कीम के तहत। So Rajiv ji, I think in the past few years, the reforms which have been brought in by the government, whether it's GST and many more, you think they are now bearing fruit now? They are showing results? निश्चित रूप से, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत की सफलता की बड़ी कहानियों में इस समय शामिल हो रही है। तो पहले हमने देखा कि मोबाइल फोन्स किस तरह से देश के अंदर बनने लगे। जो पहले हम आयातक थे, हम सारे मोबाइल जो है वो बाहर से बन करके आते थे, भारत में बनता ही नहीं था। और हमने कई बार देखा कि उसमें उसको लेकर के टीका टिप्पणियां भी होती रहीं, लेकिन उस पहलू पे नहीं जाते हैं। पॉइंट ये है कि अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो कहानी बनी उसके आगे हम जा रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये अब इस दिशा में प्रयास है कि पूरा इकोसिस्टम तैयार हो, और ये सिर्फ मोबाइल पे नहीं रहेगा, ये पीसीज की तरफ जाएगा, ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जितने सामान बनते हैं उन सब में जाएगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम अगर हमें बनता हुआ दिखेगा तो उसका हमें कई सारे इंडस्ट्रीज में फायदा मिलेगा। जैसे हमने एमएसएमईज के भी कई काइंड ऑफ we've tightened the loose ends in many places and MSMEs seem to be doing very well because of this. जी हाँ, इस इंडस्ट्री में भी मुझे लगता है कि एमएसएमईज का एक बड़ा रोल रहेगा। All right, well, we move on. The GST Bachat Utsav kicked off on 22nd September as the Narendra Modi government slashed GST rates in many sectors, benefiting citizens across the country. Today, our correspondent brings a report on how the next gen GST reforms are boosting the economy of Jammu and Kashmir. Under the revised GST structure, the government has provided a major boost to Jammu and Kashmir's economy by offering significant relief across various sectors. Under GST 2.0, lower tax rates on handicrafts, tourism, and specialty products have widened markets, strengthened exports, and enriched livelihoods. With the reformed GST rates, the iconic products such as pashmina shawls and carpets have been slashed to 5% from the previously taxed 12%, directly benefiting artisans and weavers whose livelihoods depend on these crafts. Similarly, tax reduction on the Kashmiri almond packaging industry, which is a crucial pillar of the state's economy, now attracts 5% instead of 12% GST. Along with this, GST on tourism and hotel stays up to 7,500 rupees has also been reduced from 12% to 5%. The decision has encouraged travel, increasing revenue for local businesses and further strengthening employment in the sector. The rationalization of tax rates intends to reduce costs, improve market competitiveness, and support greater value addition across key sectors, enhancing income opportunities for both rural and urban communities in the state. With Rohan and Rishti, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi. Look at the crude oil prices. Well, global crude oil prices fell today as US and Chinese economic officials outlined a trade deal framework. Brent crude was trading 0.2% down at $65.81 per barrel, and WTI crude was also trading marginally down at $61.47 per barrel when reports last came in. यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे राजीव जी कि जो तेल के भाव हैं और तेल के भाव पिछले कुछ सत्रों में हमने तेज गति से ऊपर जाते दिखा, और फिर जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें अमेरिका और चीन के बीच में सहमति के आसार की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर तेल का दाम किस दिशा में जाता दिख रहा? एक दायरे के अंदर ही रहेगा। बीच में जो अचानक आपने घटनाक्रम का जिक्र किया कि जब रूसी तेल पर प्रतिबंध की खबर आई, उसके बाद अचानक से कच्चे तेल की कीमतें ब्रेंट क्रूड को अगर हम देखें 60 के आसपास चले गए थे, वहां से एकदम से हमें 67 के आसपास तक के भाव भी देखने को मिले। लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर यही स्थिति बनी रही तो भी 70-72 के ऊपर शायद नहीं जाता। और अब ये चीन के साथ जो समझौते की ओर आगे बढ़ने की खबरें हैं, अभी हालांकि इतनी बार आगे पीछे इस मामले में खबरें आती हैं, कोई मतलब एक पक्का नजरिया बना पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इस खबर को बाजार ने पॉजिटिवली लिया है और ये मान के चल रहा है कि शायद मतलब चीजें फिर आगे बेहतर होने की ओर बढ़ेंगी, तो फिर इसीलिए भाव कम हुए। राइट। And in the Indian bullion market, the 24-carat gold price was trading 1.3% down at 1,21,950 rupees per 10 grams, while silver was also trading over 1.7% lower at 1,44,930 rupees per kilogram. श्रोताओं, आइए आपको लिए चलें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 1.4% नरमी के साथ 1,21,738 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं दिसंबर आपूर्ति वाली चांदी की चमक भी थोड़ी फीकी दिख रही थी। चांदी के भाव 1.7% नरम होकर 1,44,900 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रहे थे। और बस यहीं पर हम श्रोताओं की ओर से राजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with gains. Sensex advances by 567 points. Nifty settles at 25,966.
Major Asian stock markets close in positive territory. And government approves first tranche of 7 applications under electronic components manufacturing scheme. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak signing off. Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.